Hello everybody, myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Sarikumania. Today I will discuss second part of government budget. In previous part already I have discussed the objectives of government budget, meaning of government budget, and revenue receipts, from which sources government collect revenue receipts. So today I will discuss, in previous part already I have discussed revenue receipts and revenue expenditure. So in this part I will discuss budgetary expenditure, revenue expenditure, and capital expenditure, and also I will discuss sources of revenue receipts like tax revenue and non-tax revenue. So my friends, please comment me, subscribe me and like me. So your comment actually boost me to bring some new videos, to alter, change and modify in my videos. Friends, please subscribe, comment and like me. My channel is Asit Sarikumania. I do not want to waste more time. So now I will discuss the second part of government budget. So first I will discuss tax revenue. We know that in case of revenue receipts में हमको पता था कि जो सोर्सेस है वो टैक्स रेवेन्यू है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ओके, सो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्राप्त होता है वो दो सोर्सेस से प्राप्त होता है, एक टैक्स रेवेन्यू है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है. So meaning of tax revenue, it is the revenue received by the government from the sources of taxes. Okay, or it is the money received by the government from the sources of tax. So then I will discuss definition of tax. Tax का meaning क्या है? Tax is a compulsory contribution made by the public without aiming of any specific benefit. कोई टैक्स पेयर को गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं देता है. गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है वो टू फुलफिल द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल. ऑलवेज द गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स टू फुलफिल द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, टू फुलफिल द कलेक्टिव वांट्स ऑफ द पीपल. So government cannot give benefit, government cannot give any specific benefit to the taxpayers. Clear? So according to our tax slab, we pay the tax to the government. According to the tax slab or according to our income level, we pay tax to the government. So it is a compulsory contribution. जो tax slab में आएंगे और जो income slab में आएंगे उनको देना पड़ेगा tax. So it is a compulsory contribution made by the public without aiming of any specific benefit. क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, इसमें पता होगा जो वर्गीकरण है टैक्स रेवेन्यू, इट मीन्स दो प्रकार का टैक्सेस होता है. हम जानते हैं डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बता रहा हूँ. डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स आता है. इट इज द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. Corporation tax, tax imposed on business personnels. Clear? Tax imposed on the profit of business personnels. Tax imposed on the profit of business enterprises. Then other होता है wealth tax, death duty, capital gain tax. I will discuss it. Then indirect taxes, tax imposed by the government on goods and services. Now it is GST, goods and services tax. Clear? सो फर्स्ट आई विल डिस्कस डायरेक्ट टैक्सेस. सो दोनों में अंतर क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट टैक्स है कि नहीं, कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन गवर्नमेंट बजट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? सो डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली वेरी कॉमन थिंग, जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो एक्चुअली टैक्स पेड करता है. द टैक्स पेड बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज इम्पोज्ड. जैसे मेरा इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, मेरे लिए तो और कोई टैक्स नहीं देगा, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा. मेरा इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, मुझे टैक्स देना पड़ेगा. जैसे इन्वेस्टर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है तो उसको ही देना पड़ेगा.
तो इट मीन्स द टैक्स पेड बाय द पर्सन ऑन whom द टैक्स इज imposed, जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसको टैक्स देना पड़ता है। ये एक डेफिनेशन है। और एक कॉमनली सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, it means tax paid by the person on whom the tax is imposed. Alternatively, it means the tax imposed by the government on income of an individual and profit of business enterprises. Very common thing. मैं बार बार बताया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो इंडिविजुअल का इनकम के ऊपर वो टैक्स इंपोज होता है, और जो कॉर्पोरेशन टैक्स है जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को जो प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? सो अल्टरनेटिवली डायरेक्ट टैक्स मीन्स टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। इट मीन्स टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, and other side also imposed on the profit of business enterprises and are directly paid by them to the government. Okay, individuals directly paid the tax to the government, and similarly business entrepreneurs also directly paid tax to the government. So very common thing, it means it is tax paid by the person on whom the tax is imposed. So individual का income एवं प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगता है, उसको हम इनकम टैक्स बोलेंगे, और जो बिजनेस एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलेंगे। अभी नेक्स्ट जाएंगे कि दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। जो इम्पैक्ट होता है वो इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, जो इंसिडेंस होता है वो फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स। क्लियर? इम्पैक्ट इज इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स and incidence is final burden of tax. And in the case of direct tax, impact and incidence falling on the same person. It means initial burden of tax and final burden of tax falling on the same person. It means जिसके ऊपर टैक्स लगेगा उसको ही टैक्स देना पड़ेगा। Okay, the tax imposed by the government or levies by the government on an individual, it means it is initial burden, and ultimately the concerned individual pay tax to the government. Finally, the concerned individual ultimately bear the burden of tax. So both impact and incidence falling on the same person. जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसी को ही टैक्स देना पड़ता है। जिसके ऊपर टैक्स जब टैक्स गवर्नमेंट लगाता है उसको इम्पैक्ट बोलेंगे, जो वही आदमी वो जो टैक्स पेड करेगा उसको इंसिडेंस बोलेंगे। सो इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स एंड फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स फॉलिंग ऑन द सेम पर्सन। तो इसमें टैक्स शिफ्टिंग नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में लिख दिया देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। इसमें टैक्स शिफ्ट नहीं होगा, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा उसको ही टैक्स देना पड़ेगा। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉलिंग ऑन द सेम पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट वन जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट टैक्सेस हैव रीच टू द लिमिटेड सेक्शंस ऑफ द पीपल। डायरेक्ट टैक्सेस सभी नहीं देंगे। जैसे अभी जो टैक्स स्लैब है, इट मीन्स दोज पीपल हैविंग इनकम लेस देन 2.5 लाख पर annum, जिन लोगों का इनकम एक साल में 2.5 लाख से कम है उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अप टू 2.5 लाख, ओके, टैक्स एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। जिन लोगों का इनकम, दोज पीपल देयर इनकम इज लेस देन 2.5 लाख पर annum, they do not pay tax to the government. It is according to the tax slab. तो जिनका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस हैव लिमिटेड रीच। आज इट डज नॉट रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। अभी मैं बताया जिन लोगों का इनकम साल भर में 2.5 लाख से कम है उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, जो अभी प्रेजेंट जो टैक्स स्लैब है। तो बेसिकली नेक्स्ट वन, इट इज जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो मैं आगे में बताऊंगा जो इंडियन टैक्स सिस्टम है 3 टाइप्स है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। जो प्रोग्रेसिव क्या है, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब इनकम बढ़ता जाएगा तब टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इट मीन्स द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर्स। और एक बार बता रहा हूं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस with increase in income level of the taxpayers. टैक्सपेयर्स का इनकम जब बढ़ता जाएगा तब रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा। जैसे प्रेजेंट टैक्स स्लैब में है अप टू 2.5 लाख, फास्ट
up to 2.5 lakh nil. Next, more than 2.5 lakh to 5 lakh income 5%. More than 5 lakh to 7.5 lakh 10%. More than 7.5 lakh to 10 lakh 15%. Similarly, more than 10 lakh to 12.5 lakh it is 20% like this. इनकम बढ़ता जाएगा तब टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, वही प्रोग्रेसिव इन नेचर है, और वो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है. थोड़ा एग्जाम्पल्स को मैं डिस्कस करता हूँ. इनकम टैक्स, इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. कॉर्पोरेशन टैक्स, इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. इंटरेस्ट टैक्स, हमारा जैसे फिक्स डिपॉजिट है, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगता है. दोज पीपल हैविंग फिक्स डिपॉजिट्स बेसिकली इन द पोस्ट ऑफिसेस एंड बैंक्स, and they are receiving interest, and it means banks and post offices also impose interest on fixed deposits. Wealth tax, जैसे कोई आदमी का प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है उसको it means टैक्स देना पड़ता है, उसको वेल्थ टैक्स कहा जाता है. जैसे डेथ ड्यूटी है. डेथ ड्यूटी क्या है? जब एक आदमी के नाम पे it means प्रॉपर्टी था और वो किसके नाम पे विल कर दिया, जो उसका बच्चों के नाम पे विल कर दिया, ओके, तो उस समय उसको टैक्स देना पड़ता है. और बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स क्या है? हमारा कुछ ओल्ड प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारा कोई ओल्ड बिल्डिंग है, कोई लैंड है, उसको हम बेचते हैं, तो उसमें जो हमको जितना पैसा में हम बेचते हैं उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगा तब क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा. ओके, जो हमारा लैंड को, कि जो हमारा ओल्ड बिल्डिंग को खरीदेगा हमारा नाम पे, उसका नाम को ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस समय रजिस्ट्रेशन होगा. तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पूरा क्लियरली पता होगा कि कितना प्राइस में, सपोज मेरा पुराना लैंड को मैं बेचा कि पुराना बिल्डिंग को मैं बेचा, तो उस समय गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. और कभी कभी जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, जैसे यही, कभी जब हमारा ओल्ड प्रॉपर्टी को हम बेचते हैं और जो जितना दाम में बेचा गया ओल्ड प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन टैक्स होता है. बेसिकली यही है प्रॉपर्टी. तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स, ओके, ऑल आर डायरेक्ट टैक्सेस. और बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स. क्लियर? फिर हम चलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस में बताया इनडायरेक्ट टैक्सेस कि जब गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे अभी हम जीएसटी दे रहे हैं, 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% एंड 28%. नहीं, तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे हम टिकट बुक करते हैं, जैसे एयर टिकट की, सपोज रेल टिकट की, हम जो डीटीएच सर्विसेज, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली इट मीन्स टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो नाउ कॉमन एग्जांपल इज जीएसटी. इट इज द यूनिफॉर्म टैक्स. Now it is implemented in our country. Clear? So in this case, impact and incidence falling on different persons. It means initial impact is initial burden of tax. Initial burden of tax falling on sellers. Actually, GST paid by the sellers, but actually the sellers collect tax from the consumers. So initial burden of tax falling on the sellers, but final burden of tax bear by the consumers. हमको टैक्स देना पड़ता है. एक्चुअली सेलर्स जो है वो सरकार को टैक्स देता है. द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन सेलर्स, बट सेलर्स कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कंज्यूमर्स. जो इनिशियल बर्डन होता है वो सेलर्स के ऊपर होता है, वही इंपैक्ट है, मगर अल्टीमेट बर्डन कौन बियर करता है? कंज्यूमर्स. सो वो इंसिडेंट्स है. सो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंपैक्ट एंड इंसिडेंट्स फॉलिंग ऑन डिफरेंट पर्सन्स. इट मीन्स इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, ऑलरेडी सेम थिंग आई हैव रिटन. Impact, initial burden of tax falling on sellers, but incidence, final burden of tax bear by the consumers. So ये शिफ्टिंग है, there is shifting of tax. Actually टैक्स सेलर्स के ऊपर लगता है, सेलर्स उसको शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर्स के ऊपर. Actually टैक्स levies by the government on the sellers, but actually sellers actually shifted the tax over consumers. So there is shifting of tax. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस have a wide coverage. जैसे डायरेक्ट टैक्स में बोला लिमिटेड कवरेज, कुछ सेक्शन डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं. ये मैं बार बार बताया. अभी जो टैक्स स्लैब है, जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है पर annum, वो एक्चुअली इनकम टैक्स नहीं देंगे. इसके हिसाब से यहाँ पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, वो अलग है. ये वाइड कवरेज है, क्योंकि इट मीन्स फॉर ऑल सेक्शंस, दो 4 टाइप ऑफ टैक्स स्लैब इज देयर इन केस ऑफ जीएसटी. सो व्हेन द पीपल परचेज द गुड्स एंड अवेल द सर्विसेज, देन दे पे टैक्स. So it means almost all the sections of the people, all the sections of the society, they pay GST when they
purchase goods and avail services. So indirect taxes have a wide coverage as it reach all the sections of the society. Clear? तो नेक्स्ट वन, इट इज प्रोपोर्शनल इन नेचर. आगे मैं बताऊंगा जो टैक्सेशन सिस्टम है, जैसे डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर था, तो वैसे प्रोपोर्शनल इन नेचर क्या है, टैक्स रेट कांस्टेंट होता है. द रेट ऑफ टैक्स इज कांस्टेंट वन एट एनी लेवल ऑफ इनकम. जैसे मेरा इनकम 5, सपोज टैक्स रेट 7% है. 7, मेरा इनकम 7 लाख है, मैं 7% दूंगा. 10 लाख है 7%, 50 लाख है 7%, 1 करोड़ है 7%. इट मीन्स प्रोपोर्शनल इन नेचर मीन्स प्रोपोर्शनल टैक्सेशन मीन्स the rate of tax remains constant at any level of income. The rate of tax remains constant with increase or decrease in income. Rate of tax constant होता है. यदि टैक्स रेट 10% है, आपका इनकम कोई भी हो, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, मगर टैक्स रेट रिमेन्स सेम. और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है. जैसे कुछ कमोडिटीज के ऊपर 5% होता है, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर जीएसटी 5% है, वो सबको देना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है. जैसे कुछ गुड्स के ऊपर 12% जीएसटी है, उसको सबको, वो कांस्टेंट होता है. चला, सबको, रिच लोग उतना ही देंगे, मिडिल इनकम पीपुल उतना ही देंगे, पुअर पीपुल भी उतना ही देंगे. क्लियर? इट इज प्रोपोर्शनल इन नेचर. इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सपोज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. की क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स. सेम क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस सोर्सेस आपको लिखना है, इनकम टैक्स. फॉर इनकम टैक्स, द टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. देन कॉर्पोरेशन टैक्स, द टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. कैपिटल गेन्स टैक्स, व्हेन द पीपल sell their old properties and at that time they pay tax on the selling amount. So like this. Okay, so difference आ सकता है. Okay, clear? It is the basically tax revenue. जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट का होता है, मैं बार बार बताया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स. जो नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज, ये जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, ना सरकार के ऊपर कुछ बोझ होता है. लाइबिलिटी मीन्स एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, ना कोई फाइनेंशियल बर्डन है, ना सरकार का कोई एसेट्स में कमी होगा. जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का सोर्सेस है, एक है टैक्स रेवेन्यू, मैं बताया डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और एक है सोर्सेस है नॉन टैक्स रेवेन्यू. ओके, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, तो डेफिनेशन क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू का. इट मीन्स रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन द टैक्सेस. टैक्सेस के अलावा जो अदर सोर्सेस से गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है और जो गवर्नमेंट को जो इनकम प्राप्त होता है, उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलेंगे. इट मीन्स इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन द टैक्सेस. इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आएगा हम देखेंगे. फर्स्ट फीस आएगा. You know that basically in government hospitals or government educational institutions, minimum fees actually paid to the government. Okay, it is a payment to the government for the services that it renders to the people. जो सर्विस हमको सरकार देता है, तो एक मिनिमम फी चार्ज करता है. ओके, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिनिमम फीस देना पड़ेगा, जैसे 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ देकर पर्ची काटना पड़ेगा. जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एक मिनिमम फीस देना पड़ता है. तो वही है, इट इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट रेंडर्स टू द पीपल. एग्जाम्पल दिया है, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, एजुकेशनल फीस एटसेट्रा. ओके, ये है एक पार्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू का. देन फाइन होता है. बेसिकली when the people break up the rules and regulations of the government, जब हम रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते हैं तब हमको फाइन देना पड़ता है. जैसे अभी हेलमेट हम नहीं पहना है तो हमको फाइन देना पड़ेगा. जैसे हम 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, हमारा सीट बेल्ट नहीं है. ओके, जैसे कार हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारा सीट बेल्ट हम वियर नहीं किया है, तब हमको फाइन देना पड़ेगा. तो इट रिफर्स टू द पेमेंट्स विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट एज इकोनॉमिक पनिशमेंट. क्लियर? देन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट है एसेट है. एसेट क्या है? इट मीन्स एक आदमी सपोज उसका डेथ होने के बाद एक्चुअली वो किसी के नाम पे उसका प्रॉपर्टी को विल करके नहीं गया. एक आदमी उसका प्रॉपर्टी को किसके नाम पे विल नहीं किया, तो उसका डेथ हो गया, तो उसका प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सीज कर लेता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं है. तो एसेट इट मीन्स द गवर्नमेंट सीज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन who dies without leaving behind any legal heir or a will.
यदि यदि कोई आदमी किसी के नाम पे उसका प्रॉपर्टी को विल नहीं किया और डेथ हो जाता है, तब वो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सीज कर लेता है और उसी को एस्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट वन जो फॉरफीचर्स है, ये एक पार्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। इट मीन्स व्हेन द पीपल डिसोबे और नॉट कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कभी कभी लीगल मैटर में गवर्नमेंट कोर्ट लीगल नोटिस भेजता है लोगों को, मगर सपोज एक पर्टिकुलर आदमी को नोटिस भेजा गया मगर वो नोटिस को डिसोबे किया। ओके, इन दिस केस कोर्ट इट मीन्स इम्पोज पेनाल्टी, ओके, ऑन द पर्सन। सो वही है फॉर फीचर्स। इट मीन्स पेनाल्टी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट्स फॉर नॉन कंप्लियंस ऑफ ऑर्डर्स। जब हम कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तब कोर्ट्स क्या करता है ना, पेनाल्टी इंपोज करता है, उसको फॉर फीचर्स बोलेंगे। और एक स्पेशल असेसमेंट, ये एक पार्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। क्या है, सपोज मेरा एक लैंड था, उसका वैल्यू बहुत कम था। सपोज आई पॉजेस ए लैंड एंड इट्स वैल्यू इज वेरी लेस, बट सडनली वन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड नियर माई लैंड। मेरे लैंड के पास में एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डेवलप हो गया। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट क्या है, सपोज गवर्नमेंट वहां पर एक रेलवे स्टेशन बनाया, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया, तो उसमें क्या हुआ ना, माई वैल्यू ऑफ द लैंड हैज अप्रिसिएटेड, मेरा लैंड का वैल्यू बढ़ गया। तब मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, वही स्पेशल असेसमेंट। इट मीन्स इट रिफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। इट रिफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैव अप्रिसिएटेड ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किया और उसके पास में हमारा प्रॉपर्टीज है और हमारा प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ जाता है, तब हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, उसको स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट। हम जानते हैं कि इंटरेस्ट केस में यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज अगेंस्ट सिक्योरिटीज। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स यूनियन टेरिटोरीज को लोन देता है, तो उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, वो इंटरेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगा। Then profits of public sector undertakings or public sector enterprises. Public sector undertakings, you know, some enterprises actually owned, controlled, managed and financed by the government. जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। These enterprises actually owned, controlled, managed and financed by the government. Actually government, it is the responsibility of the government to it means make budgets for the maintaining of these PSUs, for proper functioning of these PSUs. So these PSUs, actually profit of these PSUs, it is the non-tax revenue of the government. The next one, gifts and grants. गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स के बारे में बता रहा हूँ। सपोज जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तब हमारा गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज से कुछ ग्रांट प्राप्त करता है, कुछ फाइनेंशियल ग्रांट लोन में अंतर है। ग्रांट को रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। इन केस ऑफ ग्रांट द गवर्नमेंट इज नॉट ओब्लाइज्ड टू पे बैक इट इन फ्यूचर, बट इन केस ऑफ लोन गवर्नमेंट मस्ट बी कमिटेड टू पे बैक इट इन फ्यूचर। जो ग्रांट होता है उसको सरकार को देना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई नेचुरल, एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर आवर गवर्नमेंट रिसीव्ड ग्रांट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ओके, similarly now COVID-19 in this pandemic time, it means government approaching the people for donation. Already the government employees and also private employees already donated to the government. So simply it is one type of donation received by the government from the people. Clear? So ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो ये दोनों में बताया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट्स बताया, फीस, फाइन, पेनल्टी और इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स ऑफ PSU, सीट फॉर फीचर्स, अच्छे से बताया। ओके, सो माय फ्रेंड्स, प्लीज लाइक मी, कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल असित सरिकोमनिया प्लीज। सो मैं आगे में और अच्छा वीडियो लाऊंगा। और मेरा ये जो चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, सेकेंड पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में बोथ आ गया टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें ये जो टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये जो आया फीस, फाइन, पेनल्टी, प्रॉफिट्स ऑफ PSUs, इंटरेस्ट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, सीट फॉर फीचर्स। इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन है ना, गवर्नमेंट उसको रिटर्न करेगा,
ना गवर्नमेंट का असेट्स में कोई कमी हो रहा है। तो इसीलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स का डेफिनेशन क्या है, नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज नॉर कॉज ऑफ डॉक्यूमेंट। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं मेरा फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स। जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स होता है वो 3 टाइप्स होता है। एक है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, एक है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और एक है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। उसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, जैसे इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल इन नेचर। सो इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम द टैक्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ इनकम। कोई भी इनकम लेवल हो मगर टैक्स रेट कांस्टेंट होता है। जैसे जो इनडायरेक्ट टैक्स अभी जीएसटी जो 4 टाइप्स है, 5%, 12%, 18%, 28%, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है वो कांस्टेंट है। ओके, इसमें कोई नहीं ऐसा जो रिच पीपल और मिडिल इनकम पीपल और पुअर पीपल जो भी खरीदेगा वही टैक्स उसको देना पड़ेगा, वही रेट का टैक्स देना पड़ेगा। सो इट इज प्रोपोर्शनल इन नेचर, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो और एक बार बोलता हूं, इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेस, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, द टैक्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट at any level of income और टैक्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। आपका इनकम 10 लाख है, सपोज रेट ऑफ टैक्स 10% है, 10 लाख है 10% आपको देना पड़ेगा। 20 लाख आपका इनकम है 10% देना पड़ेगा। जैसे 50 लाख आपका इनकम है 10% देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, बेसिकली इन डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, progressive in nature. Already in case of direct tax, already it means I have seen, already I have discussed that direct taxes are progressive in nature. तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है ना, जब हमारा इनकम लेवल बढ़ता जाएगा टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। जो हमारा अभी टैक्स स्लैब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इट इज अ सिस्टम इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स का इनकम जब बढ़ता जाएगा टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। और हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेस जो सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। देन रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, बेसिकली जो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये बेसिकली दिस टैक्स सिस्टम इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन एग्रीकल्चरलिस्ट इनकम। जो एग्रीकल्चरलिस्ट उनका इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो रिग्रेसिव टैक्स है। इसमें क्या है ना, जब इनकम बढ़ता जाएगा टैक्स रेट कम होता जाएगा। उल्टा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, जब इनकम लेवल बढ़ता जाएगा टैक्स रेट कम होता जाएगा। तो बेसिकली इन केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम द टैक्स रेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ द टैक्स पेयर्स। द टैक्स रेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम ओके ऑफ द टैक्स पेयर्स। ओके, मैं बार बार बताया जो टैक्स सिस्टम है वो एग्रीकल्चरलिस्ट का इनकम के ऊपर लगता है। जब एग्रीकल्चरलिस्ट इनकम बढ़ता जाएगा वो टैक्स कम देते जाएंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन। ओके, जो इंडियन जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता है वो 3 टाइप्स है। अब चलेंगे बजटरी एक्सपेंडिचर। हम जैसे बजटरी रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मेरा प्रीवियस वीडियो में। अभी हम बजटरी एक्सपेंडिचर डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक मैथमेटिक्स जैसा फॉर्मूला है, जस्ट मैं रिसिप्ट्स के जब रिसिप्ट्स डिस्कस किया था तब मैं बोला था। अभी जो एक्सपेंडिचर केस में आपको एक फॉर्मूला जस्ट रिमेंबर करना है। क्या है ना, इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर हमको फर्स्ट लेना है असेट्स, सेकंड लेना है लाइबिलिटीज। रिसिप्ट साइड में फर्स्ट हम ले रहे थे लाइबिलिटीज, सेकंड ले रहे थे असेट्स। इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर फर्स्ट वी कंसीडर असेट्स, सेकंड वन लाइबिलिटीज। जो फर्स्ट होगा वो क्रिएशन होगा और वो जो सेकंड में रहेगा वो रिडक्शन होगा। तो यहां पर फर्स्ट कौन रहेगा, असेट्स रहेगा, वो क्रिएशन ऑफ असेट्स। सेकंड में क्या रहेगा, लाइबिलिटीज, वो रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। अभी हम देखेंगे कब क्रिएशन ऑफ असेट्स होता है और कब रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज होता है। तो बजट एक्सपेंडिचर बेसिकली 2 टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत ईजी है, अच्छे से मैं बताऊंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैं बार बार बताया, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ असेट्स, सेकंड में रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें नाइदर क्रिएशन ऑफ असेट्स नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जिस एरिया में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है ना उसमें गवर्नमेंट का कोई असेट्स क्रिएट होगा,
ना गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज कम हो जाएगा, लाइबिलिटीज मीन्स कोई फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, नाइदर क्रिएशन ऑफ एसेट्स नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक्सपेंडिचर साइड में फर्स्ट एसेट्स है वो क्रिएशन, सेकेंड लाइबिलिटीज है रिडक्शन। यहां पर ना कोई एसेट्स क्रिएट होगा गवर्नमेंट के लिए, ना गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटीज में कमी होगा। क्लियर? तो अभी जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जस्ट एग्जांपल में बता देता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर टू पे सैलरीज, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अर्लियर लोन्स, subsidies to small farmers and small enterprises, grants to basically state governments, basically northeast states, hilly areas. In those states, basically flat lands, are not available. In northeast states, go to Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura. In these states, flat land is not available. It is totally mesmerized by the hilly areas and mountains. तो ये सब है, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अर्लियर लोन्स, सब्सिडीज, इट मीन्स गवर्नमेंट पेड subsidies, providing subsidies to the small farmers and small enterprises, providing grants to the backward states. क्लियर? और ओल्ड एज पेंशन, जो वार्धक्य भत्ता होता है, जो दोज ओल्ड एज पीपल मोर देन 60 बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, उनको ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ना इसमें गवर्नमेंट का एसेट्स क्रिएट होगा, ना गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, ना इधर क्रिएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट नॉर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये रिकरिंग इन नेचर, गवर्नमेंट इसको बार बार देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, पेंशन देना पड़ेगा, ग्रांट्स देना पड़ेगा, सब्सिडीज देना पड़ेगा, पास्ट लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मंथली ओल्ड एज पेंशन देना पड़ेगा, कुछ कुछ स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मंथली स्टेट गवर्नमेंट पेड करते हैं, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। क्लियर? ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? इट इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार देना पड़ेगा। बेसिकली दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेज। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए ये एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉयज को सैलरी देना पड़ेगा, उनको जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको पेंशन देना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, तो एग्जाम्पल्स में दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशंस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सब्सिडीज, ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ग्रांट्स में बताया, ग्रांट्स लोन से अलग अलग है। जो ग्रांट्स होता है, सपोज कोई सपोज मणिपुर गवर्नमेंट को जो ग्रांट दिया यूनियन गवर्नमेंट ने, मणिपुर गवर्नमेंट उसको रिटर्न नहीं करेगा। इन केस ऑफ ग्रांट्स एक्चुअली बेसिकली द बोरोयर इज नॉट कमिटेड टू पे बैक इन फ्यूचर, द बोरोयर इज नॉट ओब्लाइज्ड टू पे बैक इट इन फ्यूचर, उसको देना नहीं पड़ेगा ग्रांट्स केस में। तो इसीलिए ग्रांट्स और लोन से बहुत डिफरेंट है। तो ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ओके, इसमें क्या है ना, नाइदर क्रिएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ना सरकार के लिए जो खर्च सरकार करता है, दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, ड्यू टू दिस देयर इज नो क्रिएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, और कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ना गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल बर्डन कम होता है। ओके, और ये रिकरिंग इन नेचर, गवर्नमेंट उसको देना पड़ता है, बार बार उसको देना पड़ता है। क्लियर? और दिस बेसिकली पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशंस, सो दीज एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। समझ में आया? और आप जानते हो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ओके, इसके ऊपर जो खर्च रेगुलरली गवर्नमेंट करता है, ओल्ड एज पेंशन मंथली देता है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को रेगुलरली देता है, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। नेक्स्ट वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है, कुछ कुछ एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट का एसेट्स क्रिएट होता है, और कुछ कुछ एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज कम हो जाता है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। सो इट इज आइदर और, आइदर क्रिएशन ऑफ एसेट्स, कुछ कुछ ये जो एक्सपेंडिचर होगा, कुछ एरिया में क्या होगा ना, एसेट्स क्रिएट होगा, और कुछ एरिया में क्या होगा
ना गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज कम हो जाएगा। मैं बार बार बताया, जो एक्सपेंडिचर है फर्स्ट एसेट्स क्रिएशन, और जो सेकंड है वो लाइबिलिटीज वो रिडक्शन। तो आइदर और, जैसे रेवेन्यू है नाइदर नॉर, यहां पर आइदर और, आइदर क्रिएशन ऑफ एसेट्स और कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हम देखेंगे कहाँ सो जो एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां पर हम देखेंगे किस एक्सपेंडिचर में हमारा क्रिएशन ऑफ एसेट्स होता है और किस एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज कम होता है। बेसिकली दिस एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये जो एक्सपेंडिचर सरकार करता है वो बार बार नहीं होता है, ये इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, इसमें गवर्नमेंट कुछ एसेट्स क्रिएट करता है, ये जो एक्सपेंडिचर है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रेल लाइन्स, इट मीन्स रेलवे प्लेटफॉर्म, मेट्रो स्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, क्रिएशन ऑफ एसेट्स, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये सब इट इज इन दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। मैं बार बार बताया जे द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू द नॉर्थ ईस्ट states. Okay, so union government providing grants to the northeast states, because northeast states, you know, mesmerized or totally surrounded by the mountains and hill areas. In these states actually flat land is not available, agricultural production is very low. Okay, so majority people suffering in poverty. For this reason union government providing grants to the northeast states, and these states they do not return back the grant. In case of grant it means वो जैसा लोन जैसा वो रिटर्न नहीं करेंगे। क्लियर, एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से देखो। फर्स्ट वन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो सरकार जो लोन लिया था उसको रीपेमेंट किया। किससे लोन लिया था? पब्लिक से लिया था, आरबीआई से लिया था, कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट से लिया था, कोई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया था, उसको रीपेमेंट करेगा। ओके, जब रीपेमेंट कर देगा लोन्स को, जो लोन्स एक बोझ होता है, ओके, जब लोन्स को रीपेमेंट कर दिया, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का बोझ कम हो जाएगा। तो एग्जांपल, रीपेमेंट ऑफ लोन्स इज रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। बिकॉज एक मैं बार बार बताया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ एरिया में क्या होगा ना, एसेट्स क्रिएट होगा, और कुछ एरिया में क्या होगा, लाइबिलिटीज कम होगा। तो ये जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स है वो रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं क्या बताया, आइदर क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। रिपेमेंट ऑफ लोन्स इट इज रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, जो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ था वो कम हो गया। देन नेक्स्ट वन, क्रिएट एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मेट्रो स्टेशन, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, एजुकेशनल एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग्स एटसेट्रा। इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट का जो एसेट्स क्रिएट होता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल आता है, जैसे मेट्रो स्टेशन डेवलप बाय द गवर्नमेंट इन चेन्नई, मेट्रो स्टेशन डेवलप बाय द गवर्नमेंट इन कोलकाता, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि क्रिएशन ऑफ एसेट्स। आपको रीजन क्या देना है, विदाउट रीजन मार्क इज नॉट अवॉर्डेड। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर रीजन इट इज क्रिएशन ऑफ एसेट्स। कि गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2020-21 government develop flyovers in many states. So basically it is capital expenditure, creation of assets. Clear? और नेक्स्ट है लोन्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को जो यूनियन गवर्नमेंट लोन देता है वो भी एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो लोन्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मीन्स क्रिएशन ऑफ एसेट्स, क्योंकि वो जो जब लोन देगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स यूनियन टेरिटरीज क्या रखेंगे, सिक्योरिटीज रखेंगे। विदाउट सिक्योरिटीज यूनियन गवर्नमेंट कैनॉट सैंक्शन लोन। यूनियन गवर्नमेंट सैंक्शन लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो जब सरकार के पास सिक्योरिटी आ गया वो क्रिएशन ऑफ एसेट्स हो गया। तो इसीलिए एक ट्रिक याद रखना है, लेंडिंग मीन्स क्रिएशन ऑफ एसेट्स। जब हम लेंडिंग करते हैं, जब क्रेडिटर्स लेंड करता है वो कुछ सिक्योरिटी रखता है, और वो जो सिक्योरिटी रखेगा मीन्स वो क्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो तीन चीज आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक है रीपेमेंट ऑफ लोन्स, और एक बार बता देता हूं, रीपेमेंट ऑफ लोन्स ये खर्च होता है जो गवर्नमेंट का, इसमें रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। नेक्स्ट वन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, जैसे मैं बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मेट्रो स्टेशन, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, एजुकेशनल हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, ये आ गया, ये सब क्रिएशन ऑफ एसेट्स। और जो थर्ड है लोन्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन गवर्नमेंट सैंक्शन लोन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसमें होगा क्रिएशन ऑफ एसेट्स। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो लोन सैंक्शन जब करेगा वो
क्या रखेगा उसके पास? सिक्योरिटीज रखेगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है मीन्स वो सिक्योरिटी रखेगा। तो जो सिक्योरिटी जब रखेगा वो क्रिएशन ऑफ एसेट्स है। क्लियर? तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे से बताया। सो माय फ्रेंड्स, अगेन आई अप्रोच टू यू, प्लीज कमेंट मी, subscribe my channel Osit Sarikumania, and please like my video, and please always watch the video till the end. Definitely it would be interesting for you, and definitely you can get so many informations. तो चलो नेक्स्ट पार्ट जाएंगे, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। मैं अच्छे से बता रहा हूँ। जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें क्या होता है ना, ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर देयर इज एडिशन टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के वजह से क्या है ना, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन में वृद्धि होगा। ओके, वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है। इट रिलेट्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, चैनल्स, रूरल डेवलपमेंट, जनरेशन ऑफ पावर एटसेट्रा। जो इसी एक्सपेंडिचर से क्या है ना, डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ये एक्सपेंडिचर से क्या होता है ना, हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन में वृद्धि होगा। देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। बेसिकली डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मैं वही लिख दिया, देखो, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एड्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उसमें क्या है ना, डायरेक्टली प्रोडक्शन, इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज नो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में एक उदाहरण देता हूं, कभी नेचुरल डिजास्टर, एट द टाइम ऑफ फ्लड, एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, एट द टाइम ऑफ सुनामी, ओके, और इन सम केसेस पॉवर्टी alleviation programs, so many programs implemented by the government for reduction of poverty, to so many it means employment generation programs, okay, implemented by the government to reduce unemployment. ये सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। ये एक्सपेंडिचर से क्या होगा ना, डायरेक्टली हमारा अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होगा। जैसे जो स्कॉलरशिप, जैसे ओल्ड एज पेंशन, ये जो सब देता है, ये सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर देखो, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिलेट्स टू नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अफेक्ट नहीं करता है अर्थव्यवस्था में। ओके, दिस एक्सपेंडिचर is not directly affecting the production of goods and services in the economy. This includes expenditure on administration, defense, payment of old age pension, interest on loans, collection of taxes. जो सरकार टैक्स कलेक्ट करता है उसमें बहुत पैसा खर्च करता है। So many people actually recruited by the government, and it means government maintain their expenditure. So etc. ये जो सब है, expenditure on administration, defense, पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एटसेट्रा, ये सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसमें डायरेक्टली देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ड्यू टू नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्लियर? और कुछ ऐसा क्वेश्चंस दे दिया, हाउ इज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्कस ब्रीफली। हाउ आर टैक्स रिसिप्ट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, डिस्कस ब्रीफली। ये सब डिस्कशन कर चुका हूँ। State any 3 items of revenue expenditure in a government budget. Revenue expenditure, salary, pension, subsidies, grants, clear, interest payment, ये सब revenue expenditure में आता है। Old age pension, scholarships, expenditure for tax collection, okay, ये सब सोर्सेज लिखना है। What is government budget? Explain its major components। जो है वो बेसिकली बजट, जो गवर्नमेंट बजट, आपको दो कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट्स लिखना है। रिसिप्ट्स 2, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, वो बजटरी रिसिप्ट है। बजटरी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डायरेक्टली आपको 4 कंपोनेंट्स लिखना है, बजटरी रिसिप्ट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सब में एग्जाम्पल देना। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टैक्सेस इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डिफरेंस में क्लियरली मैं लिख चुका हूँ, देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, कंप्लीट कर चुका हूं। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट में बताया था, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, कैपिटल रिसिप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट्स कम होता है। मैं बार बार बताया, जो रिसिप्ट्स होता है इट मीन्स क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज और रिडक्शन ऑफ एसेट्स।
जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इट इज नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जो डिसइन्वेस्टमेंट ये क्या है ना, सरकार क्या करता है ना, कुछ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का पार्शियल और फुली शेयर्स को वो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को बेच देता है। डिसइन्वेस्टमेंट इज ए पॉलिसी, ओके, ड्यू टू विच government sale of the part or whole of the shares of selected public sector undertakings to the private entrepreneurs. Selected, it means some public sector undertakings, suppose since 4 to 5 years they have been facing losses. Okay, so जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉस होता है, गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट क्या करता है ना, उन्हीं सेक्टर्स का जो उन्हीं PSUs का शेयर्स को वो क्या करता है ना, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को बेचता है, कभी कभी पार्शियली बेचता है और कभी होल को बेच देता है। और ये कैपिटल रिसिप्ट है, रीजन देना है रिडक्शन ऑफ असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि शेयर्स बेच दिया तो जो शेयर्स का ओनर गवर्नमेंट था अभी उसको प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो इसे कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इट इज रिडक्शन ऑफ असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या है, कुछ कुछ केस में क्या होता है ना, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल बर्डन सरकार के लिए बढ़ता है, और जो असेट्स में सरकार का असेट्स में कमी होता है, और यहां पर असेट्स का कमी होगा, तो आपको वही रीजन देना है। व्हाट आर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल असेट्स? जो कैपिटल रिसिप्ट्स होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक है बोरोइंग्स, एक है रिकवरीज ऑफ लोन्स, और एक है डिसइन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोरोइंग्स जो है डेप्ट वो है, बोरोइंग्स को छोड़ दो, एक्सेप्ट बोरोइंग्स आपको रिकवरीज ऑफ लोन्स इट इज रिडक्शन ऑफ असेट्स, क्योंकि जब लोन दिया था स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटोरीज को, उनसे रिकवरी कर लिया मींस उनका सिक्योरिटीज को दे देगा, ओके, उनका सिक्योरिटीज को दे दिया मींस गवर्नमेंट का असेट्स कम हो गया, इट इज रिडक्शन ऑफ असेट्स। ओके, वन इज रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड अनदर वन डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है ना, इट इज रिडक्शन ऑफ असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वही है व्हाट आर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। कैन आई गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सच रिसिप्ट्स? इट मींस व्हाट आर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग, it is capital receipts other than borrowing. Give reasons, classify the following into revenue receipts and capital receipts देख लेना है। जैसे recovery of loans, it is a capital receipt है, it is reduction of assets of the government. Profits of public sector undertakings a revenue receipt है, revenue receipt कैसे है ना, neither creation of liabilities nor cause of reduction of assets of the government. Borrowings capital receipt है, it is creation of liabilities of the government. और एक उज्ज्वला योजना, द गवर्नमेंट अंडर उज्ज्वला योजना इज प्रोवाइडिंग फ्री LPG किचन गैस कनेक्शंस टू द फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन। व्हाट ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फुलफिल थ्रू द गवर्नमेंट बजट एंड हाउ? ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पर जो अभी उज्ज्वला योजना में जो LPG गैस सिलेंडर देता है, इसको बेसिकली BPL लोगों को दिया जाता है, तो उनका जीवन स्तर में वृद्धि होगा, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। ओके, सो it is the sign of social justice prevailing in secular state like India. ऐसे कुछ points आपको देना है to uplift the weaker sections of the society. Okay, so to improve the standard of living of the poor people, to reduce the gap between rich and poor. Clear? तो ये सब points आपको देना है। ये जो है किस ऑब्जेक्टिव है ना, इक्विटेबल, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसके वजह से क्या है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ फुलफिल होता है। इज द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना है। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसमें क्या है, रीजन आपको देना है नाइदर क्रिएशन ऑफ असेट्स नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ना इस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट का कोई असेट्स क्रिएट होगा, ना गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज में कुछ कम होगा। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, ये असेट्स क्रिएट होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रीजन इज क्रिएशन ऑफ असेट्स। देन गवर्नमेंट रेजेस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसिंग पब्लिक गुड्स, व्हिच इकोनॉमिक वैल्यू डज इट रिफ्लेक्ट, एक्सप्लेन। तो पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट सेलिंग दीज गुड्स टू द पीपल एट रीजनेबल प्राइस, ओके, सो दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे कैन अफोर्ड फॉर दीज गुड्स, ओके। It means all sections of the society, basically poor people also, they are able to purchase these public goods. They are able to purchase adequate quantity of these public goods to fulfill their needs. सरकार जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है और वो जो गुड्स को रीजनेबल प्राइस में बेचता है, बेसिकली गरीब लोग भी उसी गुड्स को एडिक्वेट क्वांटिटी में खरीद कर उनका नीड्स को पूरा करते हैं, ओके। उसी तरीके का इकोनॉमिक वैल्यू को आपको देना है।
बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव है ये रिलेटेड टू द वही है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ओके. एक्सप्लेन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट बजट इन फाइटिंग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव को देख लो. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करता है ना, उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देता है और अदर साइड में रेवेन्यू साइड में रेट ऑफ टैक्सेस को बढ़ा देता है. एक्सपेंडिचर को कम कर देगा तब क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा. और उस साइड में रेट ऑफ टैक्सेस को हाइक कर देगा, उसके वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा. क्योंकि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज क्या है, व्हेन कंटिन्यूअसली प्राइस लेवल इंक्रीजेस. डिफ्लेशनरी टेंडेंसी में दो साइड को जाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में. डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज में क्या है ना, कंटिन्यूअसली प्राइस लेवल फॉल्स एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स. तो इसी समय क्या करेगा सरकार ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा. गवर्नमेंट इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर. ड्यू टू दिस money supply increases, aggregate demand increases, and price increases, and deflationary situation controlled. And other side में related to the revenue, government reduce the rate of taxes. तो टैक्सेस का गवर्नमेंट क्या करेगा, रेट को कम कर देगा. जब टैक्सेस कम होगा तब क्या होगा, जैसे इनकम टैक्स का रेट कम हो जाएगा तो डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस एंड दे मेक मोर डिमांड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सो प्राइस लेवल इंक्रीजेस एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल. तो आज डिस्कशन इतना है. फिर थर्ड जो बजट चैप्टर में मैं जो थर्ड पार्ट लाऊंगा, इट मीन्स नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग बजटरी डेफिसिट्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और कुछ फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर फिस्कल इनडिसिप्लिन और फिस्कल डिसिप्लिन क्या है. तो मेरा थर्ड वीडियो को वेट कीजिए. सो माय फ्रेंड्स, आज इतना ही है. प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल असित सरीकोमनिया. थैंक यू.